Welcome back to our Q&A series with Alumni. Today we have Molly, who is software engineer at JP Morgan. So today we are going to discuss about her journey कि college days में उनके preparation days कैसे रहे, right? How she was able to crack JP Morgan, है ना? And you guys can ask the questions जो आपको technical questions पूछने हैं, you can ask her, drop in the comment. We will definitely answer all those questions at the end of the session. So let me just invite Molly, है ना? And we will discuss about her journey, JP Morgan कैसे crack हुआ, and what were her preparation strategies to crack that, right? So yeah. Hello, Molly. Hello, hi Yashi. Thanks for the Hi. introduction. Yeah. So how was your day? It's Thursday, right? As I was telling you अभी 2 minute पहले, so अभी red alert है मुंबई में, so it has been a really Heavy rain. tiring day. Heavy rainfall, like 15-20 days rainfall has not stopped here. So वैसा ही थोड़ा ऑफिस जाना आना फटाफट भाग भाग के वैसा दिन था. Busy day, right? Busy day. Okay. So Molly, before beginning the session, can you please introduce about yourself? Yeah, so I'll introduce myself. My name is Molly Singh. I work as a software developer in JP Morgan Chase. It has been 1.5 years I have been aligned with this firm, and currently I stay in Mumbai, not Bombay. uh, yeah, and I love my job. I code in Java, Spring, React Wow. these days. So yeah, I love my job, so I'm happy about that fact. That's really great to hear. सभी लोगों को like so many people will like job करना है, okay, but when you say that, it's really great to hear. Right. Okay, Molly. So let's start college like from the start, right? कि how computer science came into your life? कि आपको लगा कि यार computer science I want to मुझे यही choose करना है and I want to become a software developer. How did That's this it. happen? That's a really funny story, and I believe many people will relate to this. I never wanted to choose computer science. I Okay. never, I never wanted to be an engineer. It was not मेरी जिंदगी का purpose. I wanted to do BSc or BA or anything which is not engineering, but I Okay. ended up doing engineering, and like I cannot thank myself enough or my parents enough to drive me towards doing engineering and to really explore what all beauties lie, in doing BTech, and how BTech, evolves you as a person overall. So I really Absolutely. thank all the stars that aligned that day to convince me कि भाई तू BTech कर. Okay. So That's really computer great. science I opted immediately after my 12th, and I did not want to drop for IIT JEE preparation क्योंकि मेरे में वो कीड़ा ही नहीं था. So I took admission in a private college and I started my preparation of BTech. But I loved doing computer science engineering. Yeah. Oh, that's really great to hear. Someone has commented घर घर की कहानी. Right. Okay. So let's come back to your college days, right? So how are you able to manage coding and your academics? और कोडिंग में भी what were you practicing in your college days? क्या फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था या फिर बाद में हुआ? See, first year में I was not at all serious about my studies, honestly. क्योंकि ऐसे 12th में बहुत पढ़ाई करने के बाद फिर ऐसे मन नहीं करता. ऐसा होता है कि I should take a break. 12th में ऐसे बोर्ड्स दिए, CBSE दिया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया. तो उसके बाद फिर योर माइंड इज नॉट अलाइंड टुवर्ड्स स्टडिंग कि अब पढ़ेंगे, बीटेक भी उतनी मेहनत से करेंगे. स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की. स्टार्टिंग ऐसे सी प्लस प्लस से हुआ था, तो दैट आई हैड अ बेसिक आइडिया अबाउट बिकॉज आई स्टडीड दैट लैंग्वेज इन माई स्कूल डेज. तो वो मुझको समझ में आता था, तो एक्स्ट्रा मैंने उस पर मेहनत नहीं करी कि लेक्चरर्स के बाद में बैठ के फिर से कोडिंग करूँ, वो सब नहीं किया. बट when I was in college, this lockdown happened of COVID. So when I came home, that is when I started studying. When I started staying with my parents, they started watching me कि मैं पढ़ भी रही हूँ या नहीं. That is when I started studying. कोविड की कहानियां. COVID की कहानियां. And also there were some very good professors I had in my college
there was a professor named Ravikant sir. He drove me towards Java. So he introduced me to this beautiful language called Java, and I never looked back at any other language since then. And that was in my fourth semester, so second year. ओके, सेकेंड ईयर में. Yeah. सो ऐसे अलग अलग करके मैंने थोड़ी थोड़ी कोडिंग सीखी, थोड़े थोड़े लैंग्वेजेस पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई, लेकिन माय मेन लैंग्वेज आई वुड से वाज जावा थ्रू आउट Java. कॉलेज. या Okay. Then how were you able to manage your coding and academics? Like, okay, तो दिन में क्लासेस होती होंगी कोविड के टाइम पे एंड रात में आप Right. कोडिंग करते थे, ऐसा कुछ? राइट. तो जैसे हमारी जो क्लासेस भी होती थी, दोज वर आल्सो कोडिंग क्लासेस मिक्स्ड. So there were Okay. some classes of say Java, there were some classes of Python, some of SQL. तो उसमें जितना कर लिया, and apart from that you have to give extras ऐसे शाम को, and that also I'm telling towards the end of second year. उसके पहले तक जितना कॉलेज में पढ़ लिया उतना ठीक है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कोविड ने सब कुछ ऐसे बर्बाद कर दिया है. तो मैंने पढ़ाई की थी शाम को एक्स्ट्रा 1-2 घंटे देके, थोड़ा बहुत जब जब हो पाए. एंड देयर आर ऑल्सो प्लेटफॉर्म्स लाइक कोड शेफ Okay. या हैकर रैंक, हैकर अर्थ. तो वो सब पे मैं करती थी उस टाइम, लीड कोड. प्रैक्टिस करते थे. या प्रैक्टिस कंटेंट. सो या ओके, तो लीड कोड एज यू सेड, तो लीड कोड में आप किस लेवल पे प्रैक्टिस करते थे? लाइक देयर आर लेवल्स राइट इन लीड कोड की, राइट. मिडिल, हाँ. देन एक्सपर्ट. हाँ. तो उसमें कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुंचे, कौन से सो क्वेश्चंस? लीड कोड जो है ना, दैट इज एन एडवांस्ड वर्जन, लाइक सबसे उसको टॉप लेवल का प्लेटफॉर्म हम लोग मानते हैं. सो हैकर अर्थ या हैकर रैंक का जो एक्सपर्ट एक लेवल होता है, वी कंसिडर दैट टू बी बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ लीड कोड. तो जब Okay. आपने हैकर अर्थ, हैकर रैंक ऐसे अच्छे से कर लिया, आपके फिंगर्स बिल्कुल फ्री हो गए, यू कैन लुक एट अ प्रॉब्लम एंड यू कैन सॉल्व इट, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग लीड कोड टू योर सिलेबस. तो फिर मैंने भी मतलब ऐसे कुछ बहुत हार्ड कोडर नहीं हूँ मैं, बट मैंने बेसिक इंटरमीडिएट लेवल तक लीड कोड किया था, बट हैकर अर्थ, हैकर रैंक ये सब अच्छे से किया था. Okay. So as we were talking about coding, right? तो डेटा स्ट्रक्चर पे आपका कितना ध्यान था और आपने कितने बेसिक से स्टार्ट किया और कहाँ तक उसको मेंटेन रखा? Like while you were starting coding and all these practices. राइट. तो जैसे हमें कॉलेज में हमेशा से ऐसे बताया जाता है कि यू हैव टू चूज वन बिटवीन डीएसए एंड डेवलपमेंट. यू कैन नॉट डू बोथ, क्योंकि Both, दोनों correct. ही हार्ड हैं. और इफ यू पुट like 80% of your efforts in DSA, so your development will lag a little. And same for development. If you give more time to development, तो DSA में आपकी पकड़ थोड़ी कम हो कमजोर जाएगी. होगी. तो उसी को बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है. सो व्हाट आई डिड वाज, कॉलेज में एक मेजर होता है, तो माय मेजर वाज डेवलपमेंट. तो मैंने जो डेवलपमेंट सीखा वो कॉलेज से सीखा, और मैंने जो डीएसए सीखा वो मैंने खुद से सीखा. तो दैट इज हाउ आई बैलेंस्ड इट. और डीएसए में भी ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्व एन इन्वर्टेड बाइनरी ट्री, ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते अनलेस एंड अनटिल यू अपीयर फॉर फैंग मैंग कंपनीज. लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इफ द पर्सन इज आस्किंग यू कि डबली लिंक्ड लिस्ट क्या होता है, या फिर स्टैक का प्रिंसिपल क्या होता है, क्यू का प्रिंसिपल क्या होता है, तो यू शुड नॉट blank out. You should have a knowledge कि हाँ ये क्या होता है, I know about this. Maybe I cannot solve the problem you present me with, but I know how this works fundamentally. तो वो अगर है तो for a fresher I think it's more than enough, even if you know the principles behind DSA का जो भी structure है, तो that really helps. Okay, so can you please specify कौन से topics majorly a student should focus जो कंपनीज में, जैसे कि फैंगन कंपनी यू सेड राइट, उसमें पूछे जाते हैं, आपसे पूछे गए थे, तो कैन यू स्पेसिफाई द टॉपिक्स? राइट. मेरे से एज फार एज आई रिमेम्बर, मेरे से लिंक लिस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे से ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड मेरे से स्टैक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे. तो एज आई सेड, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सब कुछ, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, फ्रेशर्स का इंटरव्यू इसी के अराउंड रिवॉल्व होता है एज फार एज आई बिलीव. तो इसको अगर अच्छे से कर लिया, देन डीएसए के फंडामेंटल्स यू विल बी सॉर्टेड in terms of interview preparation. Okay, so we were talking about DSA और डेवलपमेंट में बैलेंस वाला थिंग, राइट? सो वी टॉक्ड अबाउट DSA. डेवलपमेंट में आप लाइक पर्सनली प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए या फिर कॉलेज में था उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स डेवलप किए? डिड यू डेवलप योर ओन प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ था?
अपने कॉलेज टाइम हाँ में? हाँ मैंने किया। मुझे डेवलपमेंट पसंद था एक्चुअली। मुझे पसंद Yes. था ऐसे पूरा पूरा फ्लो बनाना एक वेबसाइट का। तो मैंने किया था। सो कॉलेज में एज आई सेड आई एक्सप्लोर्ड मेनी डिफरेंट टेक स्टैक्स। और हम्म, यही एक आपका टाइम होता है व्हेन यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर एंड हम्म, आपको पता लगता है कि आप कौन से टेक स्टैक में अच्छे हो। तो हम्म, I made projects in Python, Django also. I made projects in React also, in Angular also, MongoDB also, Mern, Mean, सब कर दिया था लेकिन that is when I realized कि I'm good with Mern stack, React. मतलब you तो explored React everything, then you got it. या या फिर उसमें मेरे को पता चला कि क्या करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और क्या करने में मुझे गूगल कम करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ हाउ आई रियलाइज कि हम्म, ओके रिएक्ट इज़ माई स्ट्रॉन्ग थिंग हियर। सो नहीं, आई मैंशन दैट इन माई इंटरव्यू ऑल्सो। एंड लकीली मेरा जो एक हैकाथॉन का एक आखिरी राउंड था जेपी मॉर्गन में दैट वाज अराउंड डेवलपमेंट। सो उसमें भी जो टेक स्टैक यूज हुआ था वो रिएक्ट था। तो दैट हेल्प मी। that इसीलिए helps. ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक्स, कब क्या काम आ जाए यू नेवर नो। Okay. I have one curious question. If you have idea about it, can you please tell me that? कि as you said, आपको React में interest था, right? So is there any like project आपकी तरफ से basic projects जो बच्चे अभी develop कर सके, if like they are in college, right? Have any idea कि एक दो ऐसे projects आप बता सको React based, basic HTML CSS based जिससे वो start कर सके? You have हाँ राइट। सो बेसिक रिएक्ट प्रोजेक्ट्स वुड बी एन एंड टू एंड कैटलॉग वेबसाइट। ठीक है। कुछ भी ऐसा हो गया जैसे फ्लिपकार्ट का आउटलेट है या मिंत्रा का आउटलेट है वेर इन पूरा एंड टू एंड फ्लो है। देयर इज अ सर्च एट द टॉप जिसमें अगर मैं कुछ लिखूं तो देर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो उसके हिसाब से लिस्टेड हैं। देर इज एन एड टू कार्ट ऑप्शन, देर इज अ चेकआउट का ऑप्शन, देर इज अ पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड टू दैट। तो अगर इतना एंड टू एंड फ्लो बन गया ना, यूआई चाहे बेसिक ही रहे लेकिन वो जो मेन जो एक फाउंडेशन है वो अगर स्मूथ आपका रन हो रहा है एंड टू एंड एक एक कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे, वो इतना इतना स्क्रॉल करता है। आप समझ रहे हो ना फ्लिपकार्ट मिंत्रा का जो फ्लो हुआ या जो भी एंड टू एंड एक फ्लो हुआ, एक यूजर एक्सपीरियंस जिसको यूजर कहते हैं। एक्सपीरियंस हो गया, या करेक्ट? राइट। सो यूआई यूएक्स को फोकस करके, यूजर एक्सपीरियंस को फोकस करके इफ यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट, यूआई उसका इतना तोड़ू ना हो तो भी चलेगा बट योर फाउंडेशन शुड यूएक्स बी शुड बी, क्लियर। या राइट। द यूएक्स के यूजर शुड साथ नॉट एक्सपीरियंस किया रहे ये क्या बना दिया है, यूजर के हिसाब से सोच के। एंड एंड टू एंड इंटीग्रेशन हो गया तो इट्स चेरी ऑन द टॉप लाइक। हाँ एंड वन मोर थिंग, अभी एक दो साल पहले मेरा ये इंटरव्यू हुआ था, तब भी ए आई एम एल था लेकिन आज की मार्केट में ए आई एम एल इज ऑन अनदर लेवल। एक्चुअली। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैट जीपीटी या जो भी ए आई हैज लाइक रिवोल्यूशनाइज। तो आज की डेट में इफ यू हैव ए आई एम एल का कोई भी प्रोजेक्ट तो इट विल रियली हेल्प इन योर इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू शोकेस। राइट। ओके। सो वी वर एज यू सेड एआई ने कमाल कर दिया है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि एआई से कुछ जॉब मार्केट में स्पेशली टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इम्पैक्ट पड़ा है या फिर आगे जाके पड़ेगा? माई पर्सनल व्यू इज नो बिकॉज मतलब इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंस एज फार एज आई करेक्ट। बिलीव। एंड जिन लोगों ने चैट जीपीटी चलाई है, अच्छे से चलाई है, उनको पता है कि चैट जीपीटी कैन नॉट गिव यू एग्जैक्ट आंसर्स अनलेस एंड अंटिल यू गिव इट एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू गेट इरिटेटेड कि come on chat gpt give me the exact answer, I'm not asking you this so so even to operate a very revolutionized technology like AI, chat gpt, you need to have a human subconscious कहीं ना कहीं। तो I don't think it will end up cutting jobs। हाँ, ये हो सकता है कि डेवलपर का काम कम हो सकता है लाइक अभी हमें सब कुछ करना है, अपना कोड लिखना है, टेस्ट करना है, टेस्ट केसेस लिखने हैं, बग्स फिक्स करने हैं, वही थोड़ा बहुत काम थोड़ा बढ़ जाएगा। मे बी हेड काउंट थोड़ा कम हो लेकिन इट विल नॉट एंड अप ईटिंग जॉब्स एज फार एज आई बिलीव। Okay, that's interesting. I guess now actually so many questions around this we receive कि like क्या AI से impact पड़ेगा because AI के आने के बाद चैट जीपीटी जेमिनी के आने के बाद it's easy to code, right? Easy to code in any other field AI has helped a lot, right? So अभी एक डेविन करके भी आया था, right? Software तो like AI आया था तो उससे भी people were like it will replace software engineer, that's why एकदम से दिमाग में आया तो I asked. I don't think so and I hope not। Actually yeah yeah. So हाँ, where were we? I forgot.
तो projects. या आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग, लाइक आप अपन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो यू सेड वी डिस्कस अबाउट फ्यू प्रोजेक्ट्स, राइट? यू सजेस्टेड फ्यू प्रोजेक्ट्स. तो आपने कौन से प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में मेंशन किए थे उस टाइम पे हाँ, व्हेन यू वर इन कॉलेज? राइट. सो एज आई मेंशन्ड, मैंने भी ऐसे एक कैटलॉग वेबसाइट बनाई थी जिसका मैंने अच्छा. एग्जांपल साइट किया. हाँ तो हाँ. मैंने भी ऐसे एंड टू एंड फ्लो के साथ यूजिंग मर्न स्टैक आई डेवलप्ड वन. आई ऑल्सो डेवलप्ड वन यूजिंग पाइथन एंड जैंगो. तो मेरे रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स वर ऑफ डिफरेंट टेक स्टैक्स. तो ओके. if one project is of MERN stack, the other project is of Python Django, another project is of AIML, जो इतना मैंने डेवलप नहीं किया था क्योंकि उससे पहले ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था. सो इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. वी वर डेवलपिंग ऐसे एक मॉडल, वी वर ट्रेनिंग अ मॉडल विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट अनोमली इन ट्रेडिंग. जैसे ट्रेडिंग होती है रोज, तो उस पर बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा आता है. तो कभी कभी वो डेटा थोड़ा लाइक क्या बोलूँ, थोड़ा ऐसे करप्ट हो जाता है. इट इज नॉट एग्जैक्ट डेटा. तो हम लोग ऐसा मॉडल बना रहे थे जिसमें वो डेटा को हम लोग फिल्टर आउट करें और ये जो वेस्ट गार्बेज वैल्यू है उसको हम लोग अलग कर दें. अलग तो कर दे. इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, इतने सारे एक्सेल शीट के थ्रू जाना, चेक करना कि ये सही है ये गलत है. तो वी वर जस्ट ट्रेनिंग मॉडल. तो मैंने बस ये थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन दिया था कि वी आर वर्किंग ऑन दिस. लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि आप अपने प्रोजेक्ट में एआई बोल दो एंड इंटरव्यूअर खुश हो जाता है कि ठीक है इसको एआई आता है. तो That's why you were telling me like AI is related. AI is booming the market, right? एआई लिख लो यहाँ पे, you'll get selected. So nowadays, should we also mention AI in us in resumes, like software engineer, fresher की तरह किसी को जाना हो, we should also mention AI. देखो उसमें भी है कि if your luck is very good and your interviewer does not know AI, तो फिर तो very good. लेकिन अगर आपने बोल दिया कि you know AI और आपका इंटरव्यूअर भी कि अच्छा मुझे भी आता है, अब तो मैं सवाल पूछूंगा, then you are फिर आप There's one more field which is booming right now, that is prompt engineering. जब से AI prompt. introduce हुआ है, prompt engineering, या तो basically engineers prompt लिखते हैं and they get answers out of it. That to the answers which are very valuable. This is also a career. Okay, we just went somewhere else. Yeah. Yeah. So we were talking about the resume में projects वाला thing, right? So जब आपने बताया कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन किए, अकॉर्डिंग टू यू, लाइक इफ समवन वांट्स टू अप्लाई ऑफ कैंपस, व्हाट्स अ आइडियल रेज्यूमे ऑफ कैंपस, जस्ट लाइक पैनमैन कंपनीज में या फिर बिग 4 कंपनीज में, राइट? और जेपी मॉर्गन में, राइट? सो आइडियल रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो एज अ फ्रेशर? तो हमारे टाइम ऐसा कहते थे, लाइक हमारे अभी 2 साल पहले ही, आई एम टॉकिंग हमारा टाइम जैसे कितना पुराना टाइम था. नहीं, बट ऐसा है कि योर रेज्यूमे शुड बी बेस्ड ऑन द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ वेब डिजाइनर का रोल, तो योर रेज्यूमे शुड हैव प्रोजेक्ट्स जो वेब डिजाइनिंग के इन एंड अराउंड हो. एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर से अ बिजनेस एनालिस्ट रोल, तो उसमें आपको अपना सीक्वल स्किल्स या टीम मैनेजमेंट स्किल्स ये सब हाईलाइट करना पड़ेगा. तो रेज्यूमे का एक स्टैंडर्ड टाइप नहीं होता. यू हैव टू अपडेट योर रेज्यूमे अकॉर्डिंगली. मैंने भी अपने कॉलेज में खुद के 4 रेज्यूमे बनाए थे 4 अलग अलग कंपनीज के लिए. तो जो कंपनी जैसा हायर कर रही है मैं आपको वैसा सर्विस दूंगी, वैसा, राइट? सो अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट? you have to focus on the ask of the company को चाहिए क्या, and if you think you are fit enough for that role, तो update your resume accordingly. एक कंपनी है जो which is based on AI automation only, though it will not focus on आप वेब डिजाइनर हो या किस लेवल के वेब डिजाइनर हो, it will not be really interested. So if you think you have those skills to apply for the company, then update your resume accordingly. But your resume should have 2 to 3 solid projects जो बताएं कि you have actually done something in your BTech. So freshers are not taken seriously. So projects are the only thing which can save you in your off-campus interview. Off-campus, right? Okay. So one more curious question I have कि आज के टाइम में LinkedIn should be optimized if you are a fresher or if you are in 4th year college के 4th year में हो तो is it important? Does recruiter see कि like आपका LinkedIn कैसा है, आप कितने connections हैं, या फिर आपके बारे में आप अबाउट सेक्शन ऐड करते हो, आपके अचीवमेंट्स ऐड करते हो? पीपल, स्टूडेंट्स एंड पीपल आर डूइंग दैट राइट नाउ, राइट? आज के टाइम में. सो इज इट इम्पोर्टेंट? I feel you should not update LinkedIn
for your company. You should update your LinkedIn for yourself. Okay. Because जैसे जैसे आई वुड से इन टर्म्स ऑफ आज के लोग जो समझते हैं, जैसे योर इंस्टाग्राम इज नॉट जस्ट फॉर द पीपल हु कम एंड विजिट, बट फॉर That's for ऑल्सो you. टू यू टू विजिट एंड टू फॉर यू टू सी कि आप कैसे दिखते हो इस डिजिटल वर्ल्ड में, राइट? सो प्लीज डू नॉट अपडेट योर रेज्यूमे कीपिंग वन LinkedIn, keeping one company in mind. Update your LinkedIn for yourself. That is your brand value. That is not you as an employee of an XYZ company. It is you. So it is your reality, what you see yourself as, what all skills you possess. अब एक इंसान हो सकता है जो 3 कंपनीज में काम कर चुका है, एंड 3 कंपनी से वो अलग अलग टेक स्टैक गेन कर चुका है, उसको हर चीज का नॉलेज है, तो उसके लिंक्डइन में वो सारे टेक स्टैक रहेंगे, तो दैट इज हिज आइडेंटिटी. एंड yes, there can be companies who check your LinkedIn, मोस्टली स्टार्टअप्स जिनका हेडकाउंट कम होता है, तो वो ऐसे रिक्रूट करने से पहले एक बैकग्राउंड चेक बहुत फॉलो करते हैं. ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज या मास रिक्रूटर्स, इतना उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो लिंक्डइन आपका जाके देखे या इंस्टाग्राम देखे, कुछ नहीं करते वो लोग. वो आपका रेज्यूमे देखते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं. लेकिन अपडेट योर लिंक्डइन फॉर योरसेल्फ, अपनी तसल्ली के लिए करो, और आगे जाके आपको और अच्छे जॉब्स मिले इस वजह से करो. Okay. Okay. One more thing, I want to get back to the resume wala thing, right? Let's say someone is applying for JP Morgan as a fresher, right? So what and all keywords, like अभी तो ATS scanner के through सब कुछ होता है, right? What and all keywords should a fresher mention for applying for JP Morgan if someone wants to apply as a fresher, right? Most important keyword is Java. I have seen my friends who were hardcore Python developers अपने college में, but when they joined JP Morgan, they had to switch to a Java project. यहाँ पे there's an intense use of Java, and Java is a very strong language, I must say. Okay. तो Java अगर रहेगा तो well and good. React या Angular रहेगा तो, this I'm talking from JP Morgan standpoint. React Angular रहेगा तो very good. Spring रहेगा, Spring JPA testing रहेगा तो good. AI रहेगा तो फिर तो बहुत ही बढ़िया. Everybody, please mention AI. resume में. Yeah, so this was हाँ, but वही है कि किसी भी resume का keyword is the language you're most proficient in. If there's a person who's most proficient in C++, आप highlight कर दो कि मेरे को C++ बहुत अच्छी आती है. That is your keyword. Oh, got it. So Molly, let's move forward to the another phase of this session, right? That is the interview crack करने वाला part. So कैसे college में कब introduce हुआ JP Morgan और कितने rounds हुए JP Morgan में शुरू से? Right, ठीक है. तो JP Morgan हमारे कॉलेज में पहली बार आई थी. उसके पहले it never landed in our college. तो I was in my hometown, of course, due to COVID, when we got this notification कि JP Morgan has landed in your college for hiring. तो सबसे पहले तो वो नोटिफिकेशन पढ़ के मुझे लगा था कि इसमें क्या ही अप्लाई करना है, इसमें कहाँ से होगा. दिस इज माई ऑनेस्ट कि इसमें कहाँ से होगा करके, कि आई वोंट अप्लाई, क्यों ही करूँ, नहीं होना इसमें. Everybody thinks like राइट. सबको ये डाउट होता है. राइट. इट वाज माय सिस्टर हु टोल्ड कि क्या होगा, मैक्स टू मैक्स यू विल गेट रिजेक्टेड, एटलीस्ट अप्लाई. सो आई लर्नड द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन दैट डे कि वी शुड नॉट सेल्फ रिजेक्ट आवरसेल्व्स. दुनिया आपको रिजेक्ट करे चलेगा, प्लीज डोंट सेल्फ रिजेक्ट योरसेल्फ. गो अप्लाई फॉर दैट जॉब. नहीं मिलेगा बट एटलीस्ट ट्राई. तो इट वाज बिकॉज ऑफ माय सिस्टर दैट आई अप्लाइड फॉर दिस कंपनी. एंड वन मोर थिंग इज कि इसका हायरिंग प्रोसेस बहुत लंबा है. देयर आर सम कंपनीज जिसमें 1 दिन में 2 दिन में यू विल गेट रिजल्ट्स. माय हायरिंग इन JP Morgan took 5 months. Like it started Feb and I got my final results on 19th July. So it was a 5-month COVID time, right? COVID time, right? So there was this first round, जो coding का round था, which happened in Feb. उसके बाद 1 महीने तक there were no results, कुछ नहीं, सब खत्म. उसके बाद मार्च या अप्रैल के आसपास the results came of that first round which happened 1 महीने पहले. Then एक second round schedule हुआ around अप्रैल में ही, and then फिर उसके results आए जून में, and there was this final round again. मतलब the context is that the hiring process is very long. Very long. You have to be patient if you have to get selected. मेरे साथ तो ऐसा होता था, I used to give 1 round and I used to forget कि हाँ ये background में चल गया. Unless and until you got another notification कि हाँ उस दिन के round के results are out. So that is the So thing. how many technical rounds were there, you said? 2.
टेक्निकल राउंड्स. सो आई विल टेल यू द राउंड्स. पहला था एक कोडिंग राउंड विच वाज अ कोडिंग असेसमेंट. उसमें 2 क्वेश्चंस थे ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एंड आई थिंक 1 घंटे का टाइम था. मेरे स्टैट्स इधर उधर हो सकते हैं, आई डोंट नो. 1 घंटे का टाइम था, 2 क्वेश्चंस थे इंटरमीडिएट लेवल एंड उसके बाद जो सेकंड राउंड था इट वाज ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड हायर व्यू. तो वहाँ पे इट वाज मोर ऑफ एन एचआर राउंड. द सेकंड राउंड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि एचआर राउंड इज एट द एंड, लेकिन यहाँ पे सेकंड में ही दे एनालाइज कि आप कैसे बोलते हो. तो एंड इट वाज नॉट अ पर्सन टेकिंग माय इंटरव्यू, इट वाज अ सॉफ्टवेयर टेकिंग माय इंटरव्यू. So there were pre-recorded questions. I had to record my answer and I had to submit it. तो ये थोड़ा अलग टाइप का इंटरव्यू प्रोसेस. अलग टाइप का, या that's the first time I'm hearing. Right. And the third round was a hackathon which happened for 2 days, 5th and 6th June I think. So it happened for 2 days and उसमें ही technical round हुआ था. As it was a hackathon, my second technical round was around 3 in the morning. मतलब रात वाला 3 बजे. रात को 3 बजे आपका सेकंड राउंड. That's Right. very Because different. it was a hackathon ना. हाँ, so हुआ था. But Hackathon. yeah, right. So ये 3-4 rounds थे, after which results were declared. Okay. So I want to know कि फर्स्ट राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, अगर आपको याद हो. बेसिक टॉपिक्स बता दो तो. फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने कहा एक ट्री का क्वेश्चन था इंटरमीडिएट, और एक शायद लिंक्ड लिस्ट का क्वेश्चन था. लिंक्ड लिस्ट या फिर क्यू, दोनों में से किसी एक टॉपिक का क्वेश्चन था एज फार एज आई रिमेम्बर. ये 2 क्वेश्चंस थे मेरे एंड लाइक फॉर अ पर्सन हु हैज डन हैकरअर्थ, हैकर रैंक, वो सॉल्व कर लेगा आई बिलीव. इट वाज हैकरअर्थ इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस इन द फर्स्ट राउंड. इन द फर्स्ट राउंड. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड राउंड. तो सेकंड राउंड में जब आप सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, व्हाट वर द क्वेश्चंस? लाइक क्या नॉर्मल एचआर राउंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे या फिर देयर वाज समथिंग डिफरेंट व्हिच यू एक्सपीरियंस दैट? No. So one question which I very precisely remember is there was a question which said, what was the toughest day in your life till now and how did you come out of that? So That's the question was only this and you got like 15 seconds to think about it, or if you can't think about it, make a story about it, do anything, but you have 15 seconds and then you get a time span of around 30 seconds to record your answer and then submit your answer. So I was again asked 2 questions, जिसमें से एक ये था, दूसरा क्या था I can't remember, I'm sorry, but this question is something I'll never forget. The toughest day in your life and how you came out of it. So you need to record your voice and send the answers. Yeah. Okay, very digital. Very digital. Yeah. Okay. So then the last round which you told, तो आपने कहा हैकाथॉन हुआ था. तो हैकाथॉन किस टाइप का हुआ था? Like usually hackathons are in team. You need to develop some product or some website. So what was the hackathon all about? So this hackathon is called Code for Good. तो ये आप सर्च करोगे तो this is JP Morgan का trademark hackathon, the Code for Good. This is how freshers enter into JP Morgan. अगर आपने Code for Good निकाल लिया, welcome to JP Morgan, वैसा सीन है. तो इट इज स्ट्रेच्ड अक्रॉस 2 days और रैंडम टीम बनाते हैं. यू डोंट नो योर टीम मेंबर्स, कहीं से उठा के 8 लोगों की टीम बना देंगे एंड देन देयर आर सर्टेन एनजीओज विच कम टू जेपी मॉर्गन विद देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारा ऐसा एनजीओ है एंड वी आर डेवलपिंग दिस एंड दिस, वी आर फेसिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, सो हेल्प अस. तो उसी में हम लोग उनको एक ये 24 घंटे का टाइम होता है कोडिंग का, एज आई सेड हैकाथॉन में. तो उसमें वी डेवलप ऐसे प्रोटोटाइप या फिर एक अप्रोच कि ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है एंड वी आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट. अगर हमारा सोल्यूशन उनको पसंद आया, द एनजीओ एंड एज वेल एज जेपी मॉर्गन, तो इट इज टेकन अप एज अ प्रोजेक्ट इन जेपी मॉर्गन. मतलब समथिंग विच वाज इंट्रोड्यूस्ड एज just a problem statement in Code for Good hackathon, if you give a good solution, it will be developed in its full efficiency and its full glory as a project in JP Morgan. So give your heart and soul, everything to it. So that was the hackathon. Oh, that's really nice. If you're working on something and it's nice, then your project is going to be introduced in JP Morgan, right? Right. So there are many factors they judge you on. It's not just your technical skills कि आपने कितनी बढ़िया website बनाई, but how you work with your team, how you work with a random team of 8 strangers whom you have never met, and you have to align your technical strengths, their technical strengths, their weaknesses, your weaknesses, everything you have to align. You have to work as a team and you have to be mentally ready to give your interview at 3 a.m. in the morning. तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, so you have to give everything to that hackathon.
Yeah, that's very tough, but really appreciate that. It's like 3 बजे रात में you need to give the like questions का answer करो. Then strangers के साथ normally only we like as a human being, if you're giving an interview, you'll feel very scared and like पहली बार जा रहे हो, nervous हो जाते हो. But And like मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ. I was in college that time. I was in a hostel when this interview hackathon was going on. So क्योंकि कोविड से ये देश दुनिया बाहर आ ही रही थी, इसलिए we were not called in person. We were said कि जहाँ हो वहीं से करो. Just stay active for 2 days. I was in my college that time and I was in my hostel room. I was living alone. But still college में कैसे ऐसे network का थोड़ा थोड़ा issue होता है. Your Wi-Fi is not that strong. तो फिर जब मेरे इंटरव्यू का टाइम आया, it was originally scheduled at 2:30. तो जब मेरा टाइम आया, I lost the network. तो the interviewer got really angry कि he is also sitting ना, पूरी रात वो भी बैठा है and he is also interviewing, giving you his half an hour. Every student he is interviewing for half an hour. Then he also got angry कि what is this? And I lost the network. It was not in my control. But that is when I thought कि अब तो chance गया. How will I convince him? But it was really nice of him to give me another chance 3 बजे. वो भी होता है, आपका luck factor बहुत important होता है if you get a good interviewer and everything. बहुत कुछ align होके provides you with a blessing. If you want to be somewhere now, everything in the world will push you like that will happen no matter what. रुक नहीं सकते तुम. Yeah. Okay, that's really great. The story which you told us, I'm very inspired from it. कभी हार नहीं मानी. Thank you. Okay. So that's it. What I wanted to know, right? And एक last चीज और, इसके बाद hackathon होने के बाद there were any additional HR interviews या normal interview with that was नहीं नहीं, this was your total judging. इससे ज्यादा वो आपको जज नहीं कर सकते. आपको 2 दिन बिठा के बिना खाने के बिना पानी के. How you? I was on Maggie for 2 days. तो इससे ज्यादा आपको क्या ही जज करेंगे. इसके बाद I think 15-20 नहीं sorry 1 month बाद, exactly 1 month बाद I got the results. Oh, congrats. That's really great. Acha, you will like I heard all the hackathon wala cheese which you told, right? So will you suggest the student community out there, right, कि hackathons में part लो, internships करो? Will you be suggesting them? I personally love hackathons. I love hackathons. मेरे को बिठा दो, I'll sit in hackathons. Still. It's not just about, even after that hackathon, I have participated in many other hackathons. JP Morgan में hackathons आए दिन होते रहते हैं. तो like it's not just about the project which you develop. ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन बैठ के coding करनी है. There's a lot of networking also. There are a lot of fun events बीच में भी. And the whole experience, जब आपका project ऐसे खत्म होता है, when they shout कि code time out ऐसे करके they shout कि अब coding बंद करो. So that is an experience. ये सब जब तक आप students हो, जब तक आप freshers हो, करो experience. बहुत मजा आएगा. Please participate in hackathons. Yeah. That also develop the personality. हर तरीके से communication, soft skills, hard skills दोनों ही develop होती है उससे, right? Soft skills तो I believe it is equally important to the amount of technical skills you hold. अगर आपको दुनिया भर का technical knowledge है but you don't know how to communicate that, तो आप फिर have problem. You need to actually improve on your soft skills. It's very important. Okay. So that's it. What I wanted to know session में. There are few comments. Yeah. हमारे तो I'll just say right. Sure. Okay. So there is a question from Sanskar. How to be consistent for DSA? How to be consistent for DSA? तो जैसे DSA से ना स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं. They always feel कि it's very hard. बहुत कैसे क्या करेंगे? It's really tough. तो I would like to say कि इतना tough नहीं है. And please start with the basics. बिल्कुल ऐसे जाके लीड कोड में जंप मत मारो, नहीं होगा. फिर you will get disheartened कि क्यों नहीं हो रहा है. तो इसलिए प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो कि हाँ ये क्यों हो रहा है, इसका क्या पर्पस है, इसको करके हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारे एप्लीकेशन को क्या फायदा होगा, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज आवर सोल्यूशन, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द अप्रोच विथ विच वी आर सॉल्विंग द सोल्यूशन. जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक ना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आएगा, ना ही आप सिर्फ डिसहार्टन होते रहोगे. सो कंसिस्टेंसी की बात बस इतनी है कि रोज इफ यू आर in your second, third, final year,
प्लीज ट्राई टू गिव एटलीस्ट हाफ एन आवर, 40 minutes, 1 hour, जैसे भी जितना पॉसिबल हो पाए, प्लीज गिव योर टाइम टू DSA और वेब डेवलपमेंट या बोथ बट प्लीज ट्राई टू, मतलब ये लूप मत तोड़ना। एक बार ऐसा हो जाता है कि 2 महीने लगातार DSA कर लिया, फिर वो छूट गया, तो फिर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, तो इट इज नॉट दैट फ्रूटफुल। There is Give one more thing. Yeah, there is one more thing which I noticed and students usually ask कि like अब एक बार कर लिया, अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सपोज दे आर सॉल्विंग सम DSA क्वेश्चन, ठीक है, लीड को या कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म, हैकर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, राइट, इफ वो नहीं बन रहा है तो फिर छूट जाता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। सो वहां पे जो लाइफ का प्रिंसिपल है वो है टेक अ ब्रेक। कई बार ऐसा होता है कि आप एक प्रॉब्लम को देख रहे हो, देखे जा रहे हो, आप उसको देखे ही जा रहे हो, बट वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। आपने 8 बार अप्रोच मारा, 10 बार अप्रोच मारा, अलग अलग चीजें की, नहीं हो रहा है। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आधे एक घंटे सो जाओ या रात भर सो जाओ, सुबह देखो एंड इट विल गेट सॉल्व। आई बिलीव दिस, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है, अभी भी होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंपनी में जिसपे मैं काम कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, कॉफी पे कॉफी देखी जा रही हूँ, कैसे सॉल्व होगा, बट थोड़ी देर उसको बंद करो, स्क्रीन को बंद करो, कम विद अ फ्रेश माइंड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना सिली था एंड ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज समटाइम्स बंडल अप हो जाती है चीजें दिमाग में कि यार कब से काम कर, राइट, टेक अ ब्रेक। Okay, so we have one more question from Chanukya. What is difference between full stack developer and software engineer? ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो फ्रंट एंड भी डेवलप करता है और बैक एंड भी डेवलप करता है। सो अगर आपका एक एप्लीकेशन है जिसमें आपने वो जो भी फीचर रिक्वायरमेंट है उसका आपने UI भी बनाया है, उसका आप बैक एंड भी संभालते हो, उसके आपने API कॉल्स भी लिखे हैं और आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो। फुल स्टैक इज फ्रंट एंड स्टैक प्लस बैक एंड स्टैक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम उसको भी कहते हैं, जैसे इफ देयर इज अ पर्सन जो सिर्फ बैक एंड डेवलप करता है, तो ही इज अ बैक एंड इंजीनियर बट ही इज आल्सो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज द थिंग। So even if a person is only a backend engineer or a front end or a DevOps engineer, कोई भी जो भी, if he is an engineer, he is a software engineer. But if he has full-fledged knowledge of the whole software development life cycle, he is a full stack developer. Okay, I guess Chanukya को अपना आंसर मिल गया होगा, right? There is one more question from a student, right? I can't display it over here, यहाँ पे display नहीं हो पा रहा है, लेकिन I will read it out for you. Is lead code is enough or need to do in other CP platforms too? Lead code is more than enough. Lead code is more than enough. वो भी आपको कोई ऐसा नहीं कह रहा कि solve it consistently या stick नहीं टूटनी चाहिए. Lead code is more than enough. Even if there are students who don't do lead code, but they understand कि क्या चल रहा है, what is the ask of the question, and if they can come up with an approach. कई बार ऐसा भी होता है इंटरव्यूज में, even if you do not write पूरा सोल्यूशन, एंड टू एंड सोल्यूशन, पूरी कोडिंग भी नहीं लिखी, लेकिन इफ यू एक्सप्लेन द इंटरव्यूअर कि हाँ आई एम थिंकिंग विद दिस अप्रोच एंड इट विल बी सॉल्व विद दिस अप्रोच, ऑल्दो आई एम नॉट एबल टू राइट कोड इन इट्स फुल एफिशिएंसी राइट नाउ, बट आई नो हाउ दिस विल बी सॉल्व, इट इज अ ग्रीन फ्लैग. सो या, लीड कोड इज मोर देन एनफ. लॉजिक समझाओ, कोडिंग लिख दो तो बहुत ही बढ़िया. एंड अगेन या, आई थिंक इट्स मोर देन एनफ, इतना स्ट्रेस नहीं लेने का. या एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया एकदम से जब हम लीड कोड की बात कर रहे थे. लीड कोड में शायद बैचेस भी मिलते हैं, राइट? तो या स्ट्रीक्स होता है. तो बहुत सारे लोग अपने गिटहब रेपो में सब कुछ मेंशन करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे कोड किया है, ये अचीवमेंट किया है, सब मेंशन किया जाता है, राइट? सो इज इट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर गिटहब रेपो इफ यू आर अ फ्रेशर और यू आर अचीविंग समथिंग, बना रहे हो? जस्ट वांटेड टू नो. राइट. तो जब मैं भी कॉलेज में थी, मैंने भी अपना ये गिटहब बहुत अपडेट करने की कोशिश की थी. वो एक ब्लॉग्स आते हैं ना कि इतने दिन से स्ट्रीक है, इतने दिन से कमिट आ रही है, तो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पेल ग्रीन, वाइट, वैसा वाइट नहीं होने देना, वो सब मैंने भी किया है गिटहब में. लेकिन अगेन यार, तुम रोज कमिट मार रहे हो, आपका ग्रीन हो भी रहा है, लेकिन वो कमिट किसी काम का नहीं है, तो आपका गिटहब किसी काम का नहीं है. सो आप महीने में एक बार ही कमिट मारो, लेकिन सॉलिड कमिट मारो, वैसा होना चाहिए. सो आई ऑल्सो राइट, करो तो काम अच्छा करो, वरना रोज रोज करके दिखावा मत करो. डेवलप योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अ कंपनी. करेक्ट, डेवलप फॉर योरसेल्फ. Okay, so we have one more question from Sanskar. Is there any specific time when JPMC
hiring interns? Mostly JP Morgan comes to campus around Hiring for the beginning of the year. तो Jan Feb का time होगा when JP Morgan will land in your college, if it comes to your college. और again the results will come ऐसे ही 5-6 महीने बाद. But generally freshers can enter JP Morgan through this process only, the one which I told about. You have to go through 3 levels, then a hackathon. That is your only way a fresher can enter JP Morgan. So start hiring interns का timeline वही रहेगा starting of the year. But if you are in college that time, right? If you are off campus अगर करना हो तो does they recruit interns? As far as I know, they don't recruit off campus. I might be wrong, but I don't think they recruit off campus. JP Morgan goes to campuses and they formally invite students to participate in their hiring process. But off campus, I don't think so, because there have been people who have applied on the links बाहर से, लेकिन they were somehow not authorized to open the links. So unless and until there's a tie-up between your TPO and the company, I don't think you can authorize that link. I might be wrong, but this is as far as I know. Okay. There's one more thing. आपने hackathons का बात किया, right? So the hackathons which you were talking about, ये hiring process में ही होता है या फिर it's open to everybody? Anyone can join? No, it's a part of hiring process. If you clear the first 2 rounds, only then you are eligible to participate in the hackathon. Okay. Goodies बहुत अच्छी मिलती हैं, तो कोशिश करना clear हो जाए. Actually, करते रहो, participate hackathon में. It's really good. Actually, it's really good. Okay, so we have one more question from Piyush Raj. Ma'am, I am weak at development. I like doing DSA. How should I start development? ये मेरा ध्यान वो थोड़ा मैम पे ही रह गया. आई एम नॉट मैम यार. तो हार्ड एंड फास्ट सच्चाई यही है कि डेवलपमेंट करना पड़ेगा. बेसिक ही करो, लेकिन करना तो पड़ेगा. इवन इफ यू आर नॉट प्रोफिशिएंट इन रिएक्ट, एंगुलर या आजकल का जो भी नया टेक स्टैक है मार्केट में, बट इफ यू नो कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इफ यू नो जावास्क्रिप्ट तो आप रिएक्ट भी सीख लोगे, एंगुलर भी सीख लोगे, व्यू भी सीख लोगे, जितना भी जावास्क्रिप्ट है आप सीख लोगे. लेकिन यू नीड टू नो कि हाउ थिंग्स वर्क अराउंड इन डेवलपमेंट. आपका DSA बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, बट यू नीड टू हैव अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि एट द एंड कंपनी में आपको बहुत डेवलपमेंट का काम करना है. आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाने हैं. DSA का काम होता है आपके एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करना, उसको और अच्छे से उसमें फ्यूल डालना, लेकिन जो मेन इंजन है वो आपका डेवलपमेंट है. तो डेवलपमेंट तो आपको सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा. Correct. I agree. Okay. So, yeah, we talked about so many things, right? So, there's one more thing which I wanted to know from you, कि the student which asks कि development पे ध्यान देना चाहिए, development में is not that great and we speak, right? So, like, if DSA is completed, तो development में कौन सा, जैसे आपको React पता चला, right? As a student, should they also explore every other कि यार मुझे मन में करना है, मुझे full stack में करना है, मतलब ये सारी React, मतलब ये सारी चीजों में जाना चाहिए, explore करना चाहिए, या फिर कोई एक चीज पकड़ के चलना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव. अगर आप बीटेक के आखिरी साल में सीरियस हुए हो अपनी प्लेसमेंट को लेके, देन ऑब्वियसली यू डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर डिफरेंट टेक स्टैक्स. मैंने ये एक्सप्लोर किया क्योंकि मेरे अंदर वो कीड़ा था एक्सप्लोर करने का. मुझे जानना था कि कौन सी लैंग्वेज क्या करती है और क्या अलग है. मुझे बस ये कंपेयर करना था कि तुम सेम काम कर रहे हो, ये भी सेम काम कर रहा है, तो वाई शुड आई चूज दिस ओवर दैट, है ना. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव इन योर हैंड. If you're in your 3rd year, final year, please don't experiment. एक चीज पकड़ लो. Once you get placed, you eventually have to work on the tech stack your company works on, है ना. तो do that. और जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, if a person is starting with development, तो सबसे पहले तो एक HTML सीखो कि HTML क्या होता है, उसमें CSS डालो कि पेज सुंदर कैसे लगेगा, और फिर उसमें जावास्क्रिप्ट का थोड़ा वर्जन डालो. तो ये 3 चीज़ें अगर आ गई तो आगे जाके ये रिएक्ट वगैरह सब उसमें एड ऑन्स ही हैं. लेकिन ये जो बेसिक है कि मेरी वेबसाइट बनेगी कैसे, चलेगी कैसे, वो सब आपको पता होना चाहिए. बेसिक चीजें तो सभी जगह यूज होती है, दैट यू शुड नो. अगर स्टार्टिंग में एक प्रोजेक्ट करना है तो एक लॉगिन पेज बनाओ,
जिसमें आपका यूजर नेम जाता है, पासवर्ड जाता है, स्टोर होता है, लॉगिन होता है इंसान। तो वो अगर आप एक एंड टू एंड फ्लो बना लोगे ना कि सेकंड टाइम कोई आता है लॉगिन करता है तो उसका पासवर्ड आइडेंटिफाई होना चाहिए, करेक्ट पासवर्ड या इनकरेक्ट पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आना चाहिए, अगर इतना भी आता है ना तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन डेवलपमेंट का इंटरव्यू। तो ये भी एक वर्किंग प्रोटोटाइप अगर आपके पास हो तो यू विल हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। Got it. There is one last question. Any feedback on Java 21? There is lots of hype around this specific version. देखो Java 21 माई प्रोजेक्ट रिसेंटली अपडेटेड टू JDK 21 एंड स्टार्टिंग में तो पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा क्रैश हो गया ऑनेस्टली व्हेन वी अपडेटेड आवर वर्जन फ्रॉम 17 टू 21। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी लेकिन इवेंचुअली वी सॉर्टेड एवरीथिंग आउट। अभी अगर फीडबैक देना है तो ज़्यादा कुछ ऐसे डिफरेंस नहीं है। द अमाउंट ऑफ डिफरेंस वी सॉ बिटवीन जावा वर्जन्स 8, 11, वो जो वहाँ पे जो डिफरेंस था ना, यहाँ पे वो थोड़ा ऐसे मतलब अगर एक लेमैन है तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि चल क्या रहा है एंड व्हाई आर वी अपग्रेडिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट टू रिमेन हेड्स ऑन विद मॉडर्नाइजेशन अप्रोच विद टेक स्टैक बिल्कुल मॉडर्न रहना चाहिए, उसमें आप अपग्रेड करते रहते हो। अभी भी मैं एक अपग्रेड के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। आई एम अपग्रेडिंग मोनेटा एंड जावा वर्जन्स। बहुत हेडेक का काम है लेकिन ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हाँ, द स्पीड इज मोर, द एफिशिएंसी इज मोर, लेकिन ऐसा कुछ मतलब नोटिसेबल डिफरेंस नहीं पता चलेगा। Okay, got it. So yeah, here our question ends. So what's the one thing which you want to suggest abhi student community ko? One thing is प्लीज़ बी सीरियस फॉर योर प्लेसमेंट्स। मजाक नहीं है और आजकल की सिचुएशन भी किसी से छिपी नहीं है। सो प्लीज़ टेक योर प्लेसमेंट वेरी सीरियसली एंड प्लीज़ टेक योर ऑन कैंपस प्लेसमेंट सीरियसली बिकॉज ऑफ कैंपस में जितना भी तुम इन्फ्लुएंसर्स का पॉडकास्ट सुन लो, जो भी सुन लो, जो भी देख लो, ऑफ कैंपस इज twice thrice as difficult to being placed on campus. If you are placed on campus, आपके पीछे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बैकअप है, यू हैव पीपल, यू हैव योर TPO स्टैंडिंग बिहाइंड यू, तो वो बहुत बड़ा बैकअप है। एक बार आप दुनिया में निकलते हो, ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, तब आपको पता चलता है कि वो बैकअप का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सो इफ यू आर अ फ्रेशर please take your on campus placement seriously. And I will share one tip which I used मेरे placement के time में. This was also suggested by one of my professors. So he told to prepare a list of my desirable companies, not companies which desire me, but the companies which I desire. You desire. So I prepared this list of top 20 companies जहाँ मैं अपने आप को place होता हुआ देखना चाहती हूँ, and please stick to that list. तो ऐसे अगल बगल बहुत सारी भीड़ आएगी, ये कंपनी वो कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी, ऐसा नहीं है कि छोड़ ही दो, लेकिन प्लीज कीप योर माइंड सॉर्टेड कि मेरे एम में ये 20 कंपनीज हैं, अगर मैं इसमें से गई तो मेरा प्लेसमेंट सक्सेसफुल हुआ। तो प्लीज प्रिपेयर दैट लिस्ट, आज ही जाके करो कि दीज आर माई टॉप 10 टॉप 20 कंपनीज एंड आई विल एम फॉर दीज कंपनीज। अब ऐसा भी नहीं है कि उसमें सारे मैंग फैंग ही लिख दो, थोड़ा ऐसे लिखो इधर उधर का भी कि अगर मैंग में नहीं हुआ, फैंग में नहीं हुआ तो मेरा प्लेसमेंट अनसक्सेसफुल हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज हैव अ रेंज। इन दैट लिस्ट आई हैड कंपनीज रेंजिंग फ्रॉम 4 LPA to 40 LPA। तो वो थोड़ा अपना डाइवर्स माइंडसेट रखो, हर तरफ से सोचो, एंड प्लीज टेक योर प्लेसमेंट सीरियसली। Okay, got it. I guess everybody, even I enjoyed the session very much. The tips which you shared, the story which you told about yourself, that was really very interesting, and I loved it. जैसे हम लोग का conversation हुआ, and I hope सबको समझ में आया होगा what Molly was trying to convey, right? So if you guys have any other question और अभी drop नहीं कर पाए हो या कोई query है तो please drop it community में, right? And I will surely forward it to Molly if I got any questions from you guys, right? Thank you so much, Molly, for joining today's session. It was really great to have conversation with you around everything, and lovely stories, the great tips which you gave today. These are all honest tips, tried and tested. सब कुछ मेरी तरफ से वेरीफाइड है, कुछ भी ऐसा ये नहीं है कि जाओ ट्राई करो, सब ट्राइड है, टेस्टेड है। तो बिल्कुल जो प्रॉपर फीडबैक है वो मैंने दिया है, एंड प्लीज पागल मत हो जाओ अपने प्लेसमेंट के पीछे, हो जाएगा, अच्छे से होगा, जस्ट टेक इट सीरियसली। ऐसे
ऐसे टाइम पास करोगे फिर तो नहीं होगा, तो करना तो पड़ेगा. एंड थैंक यू यशी, यू आर वंडरफुल, थैंक यू सो मच. You were great. Thank you Thank so you, much for and time. thank you, Anurag sir, if you're watching this. It was I your will surely name. deliver the message. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Molly, for the time. आज थर्सडे है. आई नो वर्किंग डे है, फिर भी आपने इतना टाइम निकाला एंड थोड़ा सा टाइम स्टूडेंट्स को और हमारी ऑडियंस को भी दिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन. Thanks Hope to again. Thank you conduct so much. more and more session with you in the future. बुलाना मेरे को, मैं हूँ हमेशा. Okay. Thank you. All right. Bye Thank you, bye. Molly. Bye. So yeah guys, that was Molly and I hope सबको बहुत मजा आया होगा, right? कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो प्लीज ड्रॉप इट कम्युनिटी में. We are always active and we really want to know the feedback from you guys. If you have any other feedback or questions, join our Cypher Schools community, right? And stay tuned for more alumni live sessions. We are coming up with more sessions. Don't miss out. These sessions are only for you. आपके alumni से लिए जाते हैं. These are the feedbacks which will help you in your life. Thank you so much for joining today.